12 నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ ఫిలిమ్స్లో ఈయన యాక్ట్ చేశారు. హీస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దోస్ ఫిలిమ్స్. సో ఉపేంద్ర లిమ్మే గారు ఇవాళ మనతో ఉన్నారు. నమస్తే అండి. नमस्कारम. సార్, ఐ నో యూ డోంట్ నో తెలుగు, బట్ Yeah, मुझे मालूम कि I just didn't understand anything. लेकिन you must be saying something good regarding Freddy and Animal. సార్ ఐ నో యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, That's it. బట్ we are like most of our viewers will be Telugu audience. So here and there I'll be using few Telugu words. Of course. If you can't understand, if you are not able to understand anything, please let me know. I'll repeat that. No, I'm here for only Telugu audience because मेरे जितने भी दोस्त हैं, जिनके बहुत सारे दोस्त हैदराबाद में हैं, and I've received a lot of compliments from them कि यार there is a guy from your Marathi industry, he has done fabulous job, we loved his performance, please let him know. So I'm here only for Telugu audience. those Telugu audience to say thank you very much. Amazing, sir. Even after watching the film, even I was I was asking Pranay, producer of the film, producer. I was asking him, please arrange interview of Upendra Garu. I have to interview him for the performance he gave. Yeah, So thank you so much. he उसने भी आपका नंबर मुझे ही दिया था और बोले डोंट मिस आई ड्रीम इंटरव्यू, इट इज़ वेरी स्पेशल. That's so nice, sir. Sir, first of all, I want to tell you this. We are so glad that you have come all the way from Mumbai to Hyderabad for this interview. We My are pleasure. so glad to have you at iDream, sir. My pleasure, my pleasure. Sir, as I said in my introduction, most of the Telugu audience got surprised with your performance. You're a big actor there in Marathi, but this is your first Telugu film. Yeah, and I have dubbed in You, Telugu. and you done your own dubbing for the Telugu. Yeah. So people here are so amazed and surprised and loved your performance, sir. And how do you see this? Welcome to the Telugu industry. Superb. Never before ऐसा फीडबैक था क्योंकि आई एम रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब. जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला था तब भी इतना फीडबैक नहीं मिला. जब ये 10-15 मिनट के रोल के लिए मिल गया तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू संदीप SRV for giving me this opportunity. What else you can ask for? Yes, sir. Sir, after watching film, all the Telugu audience went back to their home and started searching for this Freddy Patel. Yeah. Who is this Freddy Patel? Yeah. And Vicky showed some of your data, but in your words, would you tell us more about yourself, like from where you are and your family? Basically, I am from Pune. Pune is a cultural capital of Maharashtra. So I am lucky. ऐसे एटमॉस्फेयर में अपब्रिंगिंग हुआ तो बचपन से ही एक ड्रामा से एसोसिएशन था. और द बेस्ट थिंग ऑफ मराठी इज़ मराठी थिएटर, दैट इज़ ड्रामा. इट हैज़ मोर देन 150 years history. Yes. So I have been associated with drama since my childhood. स्क्रिप्ट रीडिंग कॉम्पिटिशन्स होती थी, फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होती थी, फिर इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होती थी. सो आफ्टर 12th I shifted to dramatics only and I have done my graduation in dramatics from Pune University. Then I have completed my masters in communication studies. But there, from 87 to say 99, those 12 years, I have been associated with experimental theatre activity only, not commercial theatre. जैसे एक पैरल सिनेमा होता है, एक Yes. मेन स्ट्रीम फिल्म होती थी, श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, उनकी एक पैरल experimental stream होती थी. Yeah. Same in theatre, in Marathi theatre, there is a stream which is commercial play की एक stream होती थी, and there is एक stream होती थी जहाँ exclusively experimental theatre होता था. People do a lot of experiments in theatre, so it is called as experimental theatre activity. So I have been associated with experimental theatre activity for more than 10-12 years at Pune. तो उस वक्त जो फिल्में की वो भी पैरेलल फिल्में की क्योंकि देर वर वेरी फ्यू फिल्म मेकर्स जो ऐसे फिल्में बनाते थे. एक अमोल पालेकर इज अ बिग नेम. आई हैव डन 7-8 फिल्म्स विथ हिम. देन अनदर नेम इज डॉक्टर जब्बार पटेल. Two big names. I'm lucky I got opportunity to work with them. I started my professional career very late, say after my 30s. Accidentally, I came to Mumbai. One of my friends, Rasika Joshi, unfortunately, she is no more.
इज अ वेरी गुड एक्टर फ्रॉम मराठी थिएटर। तो वो एक कमर्शियल प्ले करने जा रही थी मुंबई में, तो शी रिक्वेस्टेड मी कि प्लीज़ उपेन यू कम डाउन टू मुंबई, एक कमर्शियल प्ले है बट इट इज़ ये थोड़ा बोल्ड है, थोड़ा फिजिकल है, आई विल बी वेरी कंफर्टेबल अगर तू एक को एक्टर मेरे साथ आ जाएगा तो। So then I shifted to Mumbai. But initially, first 10-12 years, I've been associated exclusively with experimental theatre and experimental films only. मेरा वो पहला प्ले था जिसका नाम था सुपर हिट नंबर 1, विच वॉज एक्चुअली सुपर फ्लॉप नंबर 1 हो गया। बट एक्सपेरिमेंटल थिएटर में इतना काम किया था तो मुंबई में एक नाम हो गया था, मेरा महाराष्ट्र में एक नाम हो गया था। तो जैसे ही कमर्शियल प्ले की एडवर्टाइज पेपर्स में आने लगी, लोगों को पता चला रहे उपेंद्र रमेश का नाउ इन मुंबई एंड ही इज़ डूइंग प्रोफेशनली, एक्टिंग प्रोफेशनली। तो बहुत लोगों से फ़ोन आए कि कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस। तो फॉर्चुनेटली उस तरह का स्ट्रगल नहीं करना पड़ा मुझे। फॉर्चुनेटली एक के बाद दूसरा काम मिलते गया। जो नाटक जिसके लिए मैं गया था दैट वाज डायरेक्टेड बाय वेरी वेल नोन थिएटर पर्सनैलिटी ऑफ मराठी, विनय आपटे। तो मधुर भंडारकर विनय आपटे का बहुत बड़ा फ़ैन था एंड मधुर भंडारकर वॉज प्लानिंग हिज फिल्म चांदनी बार। तो चांदनी बार वैसे देखा जाए तो माय फर्स्ट कमर्शियल फीचर फिल्म होगी, उससे पहले सब पैरेलल किया था। विनय आपटे रिक्वेस्टेड मधुर की ही इज़ अ वेरी फैंटास्टिक एक्टर, ही हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम पुणे फॉर एक्टिंग करियर एंड ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड यू मस्ट वर्क विथ हिम। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू मधुर भंडारकर. That is how I started my professional career with Chandani Bar, with Madhur Bhandarkar. And I must say Madhur is a man of his words. क्योंकि Madhur had a very bad or hard time before Chandani Bar. He was struggling like anything. लेकिन जैसे ही तबू ने उसे हाँ कर दी और आर मोहन जैसा एक प्रोड्यूसर मिल गया और चांदनी बार जैसे ही रिलीज हो गई, वन नाइट, एक रात में मधुर वाज अ नेशनल फिगर। तो मधुर को ऐसे लगा कि यार उपेन इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, मुझे तो इतना रिकग्नाइजेशन मिल गया है, उपेन मस्ट गेट वेरी गुड रोल्स इन बॉलीवुड। तो मैं उसको बोलता था यार कैसे मिलेगा, चांदनी बार में हम सब लोग हैं लेकिन कुछ भी करे तेरा कैमरा सिर्फ तबू पे ही जाता है। तो हम लोगों को कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन उसने मुझे बोला था कि डोंट वरी उपेन, मुझे मालूम है यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर, एक दिन मैं तुझे ऐसा रोल दूंगा कि मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाउ ग्रेट ही इज़, हाउ सुपर्ब ही इज़। तो व्हेन ही वाज प्लानिंग पेज 3, माय प्रोड्यूसर, जो रोल मैंने किया, पेज 3 वाज अ टर्निंग पॉइंट। पेज 3 वाज अ गेम चेंजर फॉर मी, क्योंकि प्रोड्यूसर चाहता था कोई बॉलीवुड का बड़ा एक्टर एक करे उसमें काम। जो रोल मैंने किया, आई प्लेड कॉप देयर इन पेज 3। बट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर यू सर फ्रॉम फर्स्ट फीचर फिल्म? चांदनी के बाद में मैंने जैसे कहा कि आई वाज स्टार्टेड डूइंग मराठी फिल्म्स प्रोफेशनल। वो पैरेलली यू आर डूइंग दोस। डेली सोप चल रहा था, टेलीविजन चल रहा था, फिल्म्स चल रही थी एंड आई वाज गेटिंग गुड रोल। तो वो सब चालू ही था। लेकिन बीच में जब आफ्टर चांदनी बार 1-2-4 साल के बाद मेरे ख्याल से पेशी की है एंड प्रोड्यूसर वांटेड, वो चाहते थे कि कोई बॉलीवुड का एक्टर बड़ा स्टार वो एक कैमियो करे। लेकिन मधुर ने कहा नो आई डोंट वांट टू वर्क विथ स्टार, आई वांट टू वर्क विथ एन एक्टर। अगर कोई करेगा तो उपेंद्र करेगा। सो आई ऑलवेज से ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि एक दिन मैं तेरे को ऐसे रोल दूंगा ना, बॉलीवुड को पता चलेगा तो क्या एक्टर है। तो पेस्ट्री रिलीज हो गई एंड वन डे मधुर कॉल्ड मी अप एंड सेड कि कल मुझे RGV राम गोपाल वर्मा पार्टी में मिले थे एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट यू ओनली। कौन है ये बंदा, वेयर इज ही फ्रॉम, कहाँ से आया, इतना बढ़िया एक्टर मेरे को मालूम कैसे नहीं। तो आई हैव गिवन यू अ नंबर टू RGV एंड वो मेरे बॉस है, तो वो RGV का कॉल आएगा तो प्लीज़ गो एंड सी हिम एंड यू मस्ट वर्क विथ हिम। और नेक्स्ट डे मुझे RGV का मैसेज आ गया कि हाय दिस इज राम गोपाल वर्मा, आई लव योर परफॉर्मेंस इन पेज 3, वुड लाइक टू मीट यू। तब मैं पुणे में रहता था। मधुर टोल्ड मी यू स्टे इन पुणे, व्हेनेवर यू कम टू मुंबई प्लीज कम एंड सी मी।
फिर एज आई सेड कि पेशरी वॉज अ गेम चेंजर। Yeah. तो उसके बाद फिर आरजीवी के साथ मैंने 4-5 फिल्में की फिर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डायरेक्टर्स आई हैव वर्कड विद, दैट इज राम गोपाल वर्मा। Like in what sense, sir? He's making or Yeah, as a director, as it is? His approach is different. yes, very interesting director to work with। एक एक्टर डायरेक्टर की केमिस्ट्री रहती है ना, Yeah. हाउ यू लुक एट द कंटेंट, हाउ यू लुक एट द कैरेक्टर, फिर वो इम्प्रोवाइज कैसे करते हैं टाइप्स वाला। हालांकि एक ही फिल्म बहुत अच्छी वर्क होगी, दैट इज सरकार राज। आई प्लेड कांतिलाल बोरा इन सरकार राज। वो भी लास्ट टाइम वेरी लास्ट मोमेंट मेरा सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि एक्चुअली एक हैदराबाद, दे वर शूटिंग इन हैदराबाद ओनली, रामोजी फिल्म सिटी में सेट लगाया था। और द एक्टर हु वाज प्लेइंग कांतिलाल बोरा, वो बच्चन साहब के सामने पूरा फ्लॉप हो गया। उनके मुंह से डायलॉग ही निकल नहीं रहे थे एंड शूटिंग पैकअप हो गया एंड वी वाज वेरी अपसेट। तो रामू प्रॉमिस्ड बिग बी कि नो डोंट वरी सर, आई विल गेट वेरी गुड एक्टर फॉर दिस रोल एंड ही कॉल्ड मी अप। बोला कि बिग बी वॉज वेरी अपसेट, आई प्रॉमिस्ड हिम कि आई विल गेट गुड एक्टर फॉर दिस रोल एंड नाउ आई वांट यू टू प्ले दैट रोल, डोंट टेक इट अदरवाइज। वो तुम्हारे उम्र का रोल नहीं था, इसलिए मैंने पहले तुम्हें नहीं बोला था। देन वी डिड सम लुक और इसका एक गेटअप करके देखा। आई मस्ट बी 40-42 एट दैट टाइम, और वो कैरेक्टर का एज अराउंड 58-60 वाला कैरेक्टर था। तो बियर्ड और एक वाइटनर लगा के उसे एक गेटअप बना के वो एक कांतिलाल बोरा किया। तो दैट इज हाउ माय बॉलीवुड जर्नी शुरू हो गई। That's a quite journey, sir, actually, if you see. Director has said, I don't need a star, I need an actor. Actor, yeah. I have heard, like, many actors, theatre actors told me that they never want to get into films because they don't believe in feature films acting. They are very much satisfied with the theatre work and they never want to get into the films. इस तरह का एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझ में भी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, because as I said earlier, I have been associated with experimental theatre for more than 12 years. उसमें one of the best actor of his generation टाइप वाला एक टैग भी आया था, क्योंकि जो भी प्ले करता था वो अच्छा होता था, एक अच्छा रिकग्नाइजेशन मिलते थे, बहुत सारे अवार्ड्स मिलते थे। तो उससे एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है परफॉर्मर में, एक्टर में। फिर उससे लगता है यार हम जो करते हैं वही सही है, वो कमर्शियल वो हम नहीं करेंगे टाइप वाला एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना। लेकिन एवरी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी हैज़ सर्टन लिमिटेशन। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारा ग्रुप 50-60 लोगों का था, और बाद में 8-10 साल के बाद हम 2 ही लोग रह गए। एक राइटर था संजय पवार और मैं एक्टर था। बाकी सब लोग प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। लड़कियों की शादी हो गई, वो यूएस में चले गई, लड़कों जितने भी लड़के थे वो सिक्योर जॉब्स देख के उधर चले गए, हम ही नाटक करते रहे। फिर मुझे जब रसिका का फ़ोन आया, जैसे मैंने पहले बताया था, तो मुझे ऐसे लगा कि यार जो सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझ में है, लेट मी गो देयर एंड लेट मी चेक माई सेल्फ। अगर मैं सचमुच में अच्छा एक्टर हूँ तो मैं कमर्शियल में भी सक्सेस हो जाऊंगा। अगर मैं वो नहीं कर पाया तो आई एम नॉट दैट गुड एक्टर। Just get out of your comfort zone. Yeah. So मैं बोला कि it is a new beginning, let's start, love all, start again टाइप वाला खुद को समझाया था। Everything went smoothly, क्योंकि एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स एज आई सेड कि वो डेस्टाइन भी है कि जैसे विनय अपटे और मधुर भांडारकर का एक कॉम्बिनेशन होना, फिर विनय अपटे सर ने उनको रिक्वेस्ट करना, फिर मधुर का और मेरा एक केमिस्ट्री बन जाना, उसने मुझे प्रॉमिस करना कि मैं तुझे एक दिन ऐसे रोल दूंगा। एज आई सेड ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड ही गेव मी दैट पेस्ट्री वाला कॉप। पेस्ट्री वाले कॉप से फिर आरजीवी की वजह से बच्चन साहब के साथ काम। सो नथिंग वॉज प्लान्ड। As I said, मैं हमेशा कहता हूँ कि आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग, कभी भी कुछ नहीं किया। यू जस्ट कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट. Let someone else like Madhur Bhandarkar, Ram Gopal Verma, SRV, let them plan something for you. They are there. You just keep on trying and try to give your
बस लोग हैं आजू बाजू में, वो देख रहे हैं, वो उनको पता है, दे आर सेंसिबल पीपल। अगर आपके लायक कुछ अच्छा काम है तो वो आपको मिल जाएगा। इट इज़ ओनली योर परफॉर्मेंस जो आपको अच्छा काम देता है, नॉट गुड मॉर्निंग वाला मैसेज, नॉट हैप्पी दिवाली वाला मैसेज, नॉट हाउ आर यू, सो नाइस यू फॉलो वाला कॉल और मैसेज। इट इज़ ओनली योर परफॉर्मेंस Yeah. जो आपको एक अच्छे काम की प्रोबेबिलिटी ओपन करता है। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन। Sir, you're a national award winner, and you've been part of 12 films which won national award. But still, there are set of people in the world, not only in India, in the world, they don't consider acting profession as serious, and they don't give the respect an actor deserve. How do you see this, sir? एक्चुअली यू कैनॉट हेल्प इट। मेरा भी अपब्रिंगिंग टिपिकल मराठी मिडिल क्लास फैमिली से हुआ है। तो जब मैंने 12th साइंस छोड़ के आई शिफ्टेड टू ड्रामेटिक्स, माई पेरेंट्स वेयर लाइक क्या भीख मंगे धंधे कर रहा है यार तू, क्या करेगा यार, वो तू कर रहा, तेरे को करना है ना, एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो पहले तेरी पढ़ाई पूरी कर, अच्छा जॉब सिक्योर कर ले, उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें कर लेना थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग का शौक। तो दैट यू कैनॉट हेल्प इट। लेकिन वो सिचुएशन अभी चेंज हो रही है। Yeah. जो एक ज़माने में एक पेरेंट्स की लाइन ऑफ थिंकिंग थी, स्टाइल ऑफ थिंकिंग थी, मेरे जनरेशन के बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं कि मेरे बेटी को डांस में करियर करना है तो पेरेंट्स बोलते हैं गो, जहाँ तेरे को बेस्ट एजुकेशन मिलता है वहाँ तू जा, थिएटर करना है तो जहाँ तुझे बेस्ट एजुकेशन मिलता है वहाँ तू जा। तो नाउ टाइम हैज चेंज्ड। अभी वो अप्रोच भी चेंज हो गया है और ये भी चेंज हो गया है। लेकिन जब मैंने ये सोच लिया था कि मैंने एक्टिंग या डायरेक्शन, इन थिएटर आई वाज डूइंग बोथ, आई वाज इन डायरेक्शन एंड एक्टिंग आल्सो। तो उस ज़माने में ये बहुत मुश्किल था कि नहीं, पहले एक एजुकेशन कंप्लीट करो, अच्छा जॉब सिक्योर कर लो, उसके बाद टाइम पास के लिए एक्टिंग कर लेना, नॉट एज अ प्रोफेशन। जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ से एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का या लड़की आती है, वहाँ उतना क्या सपोर्ट नहीं करते, नहीं लिबर्टी नहीं थी, सपोर्ट नहीं करते थे। फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स को मालूम था कि मैं उनकी सुनने वाला नहीं हूँ तो उनके पास कोई ऑप्शन ही था नहीं। तो वो फिर बोले कि तेरे को जो करना है वो कर। बट आई एम हैप्पी कि अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम दे आर नो Passed away. लेकिन मेरी माँ ने मेरा सक्सेस देखा, मेरे डैड ने मेरा नेशनल अवार्ड देखा, तो आई एम हैप्पी। But during the initial days, was it difficult for you, sir, financially? Because theaters में कुछ मिलता नहीं. ऑफ कोर्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और उसमें क्या होगा, मेरी शादी भी जल्दी हो गई, व्हेन इट वाज अ लव मैरिज। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था और मेरी बीवी मेडिकल सेकंड ईयर में थी। तो शादी होने के बाद हम दोनों डब्बा लेके टिफिन लेके कॉलेज भी जाते थे अपने अपने। Okay. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन फैमिली वो सपोर्ट था, वो वाला सपोर्ट था क्योंकि अदर। और वो क्या है, उन दिनों में, उस फेज में लायबिलिटीज भी बहुत कम रहती है। माँ बाप का घर है, 2 वक्त का खाना मिलता है, तो देर आर एक्सपेंसेस इतने थे ही नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, एज फार एज स्ट्रगल इज कंसर्न, ओ दैट वाज अ हार्ड टाइम, वी हैव बीन थ्रू दैट एंड सो। मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा आई हैड अ वेरी बैड टाइम, बिकॉज एवरी एक्टर, एवरी आर्टिस्ट वो एक रोमांटिसिज्म में रहता है ना कि यार आज खाने को कुछ नहीं मिला, फिर भी वो हैप्पी है। They live in that. So I have enjoyed each and every beat of that struggling period. सफर आपकी फैमिली होती है, आपकी बीवी होती है, तो योर पार्टनर ज़्यादा सफर होता है, Dependent on you. बिकॉज यू आर रोमांटिक, तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी पार्टनर भी उतनी रोमांटिक हो। They live in reality. हाँ। We live in our dreams. तो बहुत बार मेरी बीवी मुझे वो रियलिटी का इंजेक्शन देती है। जैसे मैंने कहा कि आई एम द फर्स्ट एक्टर हु हैज़ गॉट नेशनल अवार्ड
फॉर मराठी फिल्म, मराठी एक्टर को मराठी फिल्म के लिए नेशनल मिलने वाला। तो उसके बाद जिस तरह की फिल्में मैं करने चाहता था वो मेरे पास आ नहीं रही थी, और जो मैं नहीं करना चाहता था वो हर रोज एक स्क्रिप्ट आता था। तो आई रिजेक्टेड ऑलमोस्ट 35-37 स्क्रिप्ट्स फिल्म्स। तो माय वाइफ सेड एटलीस्ट इसमें से एक तो ले ले जो कम खराब है, क्योंकि घर कैसे चलेगा फिर। Yeah. तो व्हाट आई मीन टू से शी इज वेरी प्रैक्टिकल। बहुत बार एक्टर आर्टिस्ट की पार्टनर भी प्रैक्टिकल रहती है, और आर्टिस्ट अपना रोमांटिसिज्म में आई हैव रिजेक्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टाइप वाला। फॉर दैट मैटर ये एनिमल का फ्रेडी भी डेस्टाइन था, क्योंकि वन फाइन मॉर्निंग आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम संदीप सर्स असिस्टेंट जितेंद्र भोसले, एंड ही कॉल्ड मी, सर टी सीरीज की फिल्म बन रही है, संदीप रेड्डी इज डायरेक्टिंग द फिल्म, रणवीर इज हीरो ऑफ द फिल्म, देयर इज वन सीन, कैन यू डू दिस? तो आई सेड नॉट इंटरेस्टेड, Because it's one scene. Okay. So I'm doing good in my regional films. Yeah. I'm going happy with doing small content-oriented films. तो it is not necessary कि रणवीर है, टी सीरीज की फिल्म है, तो एक सीन के लिए मैं जाऊँ। तो मैंने 2-3 बार उसको नहीं बोला था। तो एक दिन फिर जितेंद्र ने फ़ोन करके बोला कि संदीप सर चाहते हैं कि आप ही वो रोल करें, क्या आप उनके साथ एक मीटिंग के लिए आ सकते हैं? वो खुद आपको कुछ फिल्म के सीन के बारे में नरेशन देना चाहते हैं। तो आई सेड ओके, क्योंकि तब मुझे पता चला कि ही इज द डायरेक्टर ऑफ अर्जुन रेड्डी, और अर्जुन रेड्डी। But did you watch Arjun Reddy before, sir? ऑफ कोर्स Okay. अर्जुन रेड्डी मैंने तेलुगु वाली अर्जुन रेड्डी देखी थी, नॉट कबीर सिंह। कबीर सिंह, yeah. तो अर्जुन रेड्डी देख के मुझे ऐसे लगा यार, Who is this director? यस, क्योंकि जब मेरे कॉलेज दिनों में राम गोपाल वर्मा की वो पहली वाली शिवा देखी थी, तो उसका एक इम्पैक्ट था, उसका एक इम्प्रेशन था। अरे फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, द वे ही कंसीव्ड यूथ साइकी, और जिस तरह से टेक्निकली एग्जीक्यूट किया था, द सेम थिंग हैपेंड व्हेन आई सॉ अर्जुन रेड्डी। और मैं बोला यार ये कौन है संदीप रेड्डी वांगा? दिस SRV इज RGV ऑफ दिस जनरेशन। Yes, sir. We RGV. तो मुझे ऐसा लगा कि ये इस जनरेशन का RGV है। तो मैं बोला कि यस, लेट्स गो एंड मीट हिम, इंटरेस्टिंग है, मीटिंग कर लेते हैं, बिकॉज इज अ इंटरेस्टिंग डायरेक्टर, एंड इट इज ऑलवेज प्लेजर टू मीट सच पीपल। तो मैं बोला कि मीटिंग कर लेते हैं और बाद में बोल देंगे, ना बोल देंगे। बट व्हेन आई मेट हिम फर्स्ट टाइम, और जब SRV ने मुझे सीन नरेट किया, तो फिर कोई भी सेंसिबल एक्टर वो रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि The way he narrated. the way he narrated कि he said कि this is high voltage action sequence, interval point है, and it begins with your sequence, और वो पूरा sequence उन्होंने बताया मुझे। तो मैं, and at that time I was shooting another Hindi film, एक्सेल, फरहान अख्तर, he has produced that film। तो उसकी मडगांव एक्सप्रेस जो अभी आएगी मार्च में, तो मेरी सब स्कैटर डेट्स उनके पास थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो संदीप को मैं बोला कि यार मैं कर तो लूँगा, लेकिन मेरे पास डेट होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि संदीप को सरकार राज का कांतीलाल वोरा उसके दिमाग में था, और वो बोला कि जो बच्चन साहब के सामने ऐसा कैरेक्टर कैरी कर सकता है, तो वो मराठी में उपेंद्र लिमया ही चाहिए। तो फिर संदीप का एक ऐसा है कि उसका एक खुद का एक स्टडी चालू हो जाता है। फिर उसने गूगल पे जाके उपेंद्र लिमया सर्च मार के पिक्स में जाके मेरी एक इमेज निकाल के मुझे दिखाई, और जिसमें मुझे मूंछ बीच नहीं थी और ये नहीं थी, और बोला कि ये उपेंद्र, ये He showed your photo to you. to me, and he told me कि I'm looking This Upendra Limaya. इस उपेंद्र लिमया एज अ फ्रेडी। तो मैं बोला इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, आई हैव ऑलरेडी कमिटेड अनदर फिल्म, और मेरी स्कैटर डेट्स है उनके पास 3 महीने, तो आई कैन नॉट डू दिस। ओके डोंट वरी, विल वर्क ऑन लुक, विल वर्क डेट्स एंड लुक्स, बट आप कर रहे हो? तो मैं बोला कि यस, मैं स्पेशल अपीयरेंस करूंगा।
तो दैट इज़ हाउ इट बैगन्स अप। तो मैं जैसे मैंने कहा ना कि आई हैव नॉट स्ट्रगल एट ऑल फॉर दिस फ्रेडी, इट वॉज डेस्टाइन्ड। आज मुझे मेरा बेटा बोलता है कि यार बाबा, तू अगर मीटिंग नहीं करता संदीप सर से तो एक बेहतरीन कैरेक्टर निकल जाता तेरे करियर से। तू बहुत रिग्रेट करता, बहुत रिग्रेट करता ना। मैं बोला हाँ, मैं रिग्रेट करता, सचमुच में रिग्रेट हो जाता अगर ये फ्रेडी मुझे करने नहीं मिलता तो। Yeah. बट व्हाट एन एक्सपीरियंस। 2-3 दिन का शूट था मेरा फ्रेडी का, बट दैट प्रोसेस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एज आई जैसे मैंने आरजीवी के बारे में बोला, वो वेरी इंटरेस्टिंग डायरेक्टर टू वर्क विथ। फिर वो वहाँ से शुरू होता है जहाँ डायरेक्टर आपको एक सीन नरेट करते हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं, ही टेल्स एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट दैट कैरेक्टर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है और उसका एक मोटा मोटा एक आपके दिमाग के सामने आ जाता है। एंड उसके बाद उसकी क्रिएटिव टीम, प्रणय इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिज क्रिएटिव टीम। वो ही वॉज ऑलवेज देयर व्हेन क्रिएटिव डिस्कशंस हम लोगों की होती थी। तो वो सेशंस, दो सेशंस वेयर वेरी इंटरेस्टिंग कि ये सीन है। तो फिर मैं बोलता था कि गेट मी द टेक्स्ट फर्स्ट, मुझे सीन दे दो एंड आई विल गेट बैक टू यू। तो बहुत सारी चीज़ें आज जो एनिमल में फ्रेडी के सीन में दिखती है वो इम्प्रोवाइज हुई है। बहुत सारे एक मराठी का उसका एक ये दिया है, तो वो फुल फ्रीडम संदीप सर ने मुझे दिया था कि आई वॉन्ट दिस एटीट्यूड, उस एटीट्यूड को आप मराठी में एडलिप ले लो। फिर मैं जो भी बोलता था आईच्या गावात लायकीत राहायचं टाइप वाला कुछ भी, तो वो असिस्टेंट को पूछता व्हाट डज दैट मीन, व्हाट, ओके हाँ, ओके गुड गुड। दैट आत्मनिर्भर, वो तो शॉर्ट से पहले कुछ देर मुझे दिमाग में आया और मैं संदीप को बोला यार संदीप वी मस्ट यूज दिस वर्ड आत्मनिर्भर, अभी तो इतना पॉपुलर है एंड दिस इज परफेक्ट फॉर दिस सिचुएशन। तो दैट क्रेडिट गोज टू हिम कि उसने वो पूरा एक ओपन ये रखा था। ऐसा नहीं था कि जो मैं कह रहा हूँ बस उतना ही करो। ना शो मी, क्या तुम्हारे दिमाग में, हाँ शो मी करके दिखाओ, हाँ गुड, लेट्स डू इट। You're doing exactly like you. So it was like that. So it was a great fun. So, yeah. Actually, people who went to the theater and saw the film for the first time, Ranbir's characterization is only as shocking for us. And after 1.5 hours of the film, there comes Freddie Patel with a knockout performance, and people stopped looking at Ranbir and started looking at you for the whole 10 minutes. No, it is not my performance. It is that screenplay. It is a very author-backed situation. यानी कि वो फ्रेडी को सब फुलटॉस ही मिले ना, तो फ्रेडी ने बस फुलटॉस को स्टेडियम के बाहर भेज दिया, इतना ही किया। लेकिन फुलटॉस तो स्क्रिप्ट में था, फुलटॉस तो स्क्रीन प्ले में था। तो फ्रेडी को जाके सिर्फ बैटिंग अच्छी कर दी थी। सो आई एम हैप्पी, वो एक वेरी ऑथर बैक सिचुएशन एक फ्रेडी का मिल गया। And Freddie doesn't even know what Ranbir is in the Of film. course, He yeah. doesn't know anything. नहीं, वो तो इसीलिए आया है ना कि To know. మీరే నా ఫోన్లో మా ఇంజనీర్తో మాట్లాడండి। Exactly. वो है ना पिक्चर लाइव मारो मा टीम अंथा, मेरी टीम पागल हो गई। तो इसके लिए वो आया ना उधर, उसके लिए वो आया था कि अदरवाइज एक ऑर्डिनरी आर्म सप्लाई होता तो उसका बंदा आके दे जाता। लेकिन ही वॉज इंटरेस्टेड हु इज द मेन गाय जिसने ये ब्रीफ दिया, इतना डिटेल दिया। हाँ इतना डिटेल दिया है, हमारे लोग पागल हो गए। और दैट इज व्हाई ही केम टू मीट रणबीर। तो उसे मालूम ही नहीं था। और वो कंप्लीट उसका है ना, देखो एक एंड क्रेडिट गोज टू रणबीर ऑल्सो ना कि बहुत सारे स्टार्स Insecure हो जाते हैं, यार आई एम अ सुपरस्टार, आई एम अ स्टार। और कोई एक एक्टर आके, कोई कैरेक्टर आके, स्टार तो खाली ऐसा खड़ा है और वो परफॉर्म करके जाता है, तो एक्टर इनसिक्योर हो जाता कोई भी। बट रणबीर व्हाट अ फैंटास्टिक को एक्टर टू वर्क विथ, क्योंकि ही वाज ओके विद एवरीथिंग ना कि ऐसे करना है, ऐसे देखना है। उसने सब रिएक्ट करना है, बोलना तो सिर्फ फ्रेडी को ही है ना। तो बहुत कोई भी शायद कोई एक्टर बोलता कि यार नहीं
आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, ये पूरा फ्रेडी ही लेके जाता है, आई एम अ हीरो, आई एम अ स्टार, बट ही वाज लाइक was never ओके like- संदीप कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा, ओके संदीप इज दैट ओके, ओके, ही इज 100% डायरेक्टर्स एक्टर, सुपर्ब सुपर्ब। मैंने पहले दिन भी जब मैं आई मेट हिम आई टोल्ड हिम कि आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स, इट इज़ नॉट बिकॉज यू आर स्टार बट यू आर अ वेरी गुड एक्टर, देर आर वेरी few stars who are good actors and of course he's top of them. Sir, as you said, most of the people say that there is very much similarity between RGV and SRV, Sandeep Reddy Vanga. Apart from making path-breaking films, is there anything common in them? मैंने दोनों के साथ काम किया है और जैसे मैंने कहा अर्जुन रेड्डी देखने के बाद मुझे लगा कि ही इज आरजीवी, एसआरवी इज आरजीवी ऑफ दिस जनरेशन, ऑफ कोर्स Their approach towards movie or their thinking, is there anything similar? एक्चुअली संदीप सर ने एक्चुअली दो ही मूवी की है, Arjun Reddy and Animal अर्जुन रेड्डी और ये वाली, क्योंकि कबीर सिंह तो इट वाज अ रीमेक, remake. तो मालूम नहीं, शुरुआत तो सेम है ऐसे मैं कहूँगा, शिवा अर्जुन रेड्डी वहाँ से जो शुरू हुआ है वो तो सेम है, बट आरजीवी प्रेजेस एसआरवी लाइक एनीथिंग। बहुत सारे लोग जब संदीप रेड्डी वांगा की क्रिटिसाइज करके बहुत ये कर रहे थे, तो आरजीवी का माय रिव्यू अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो प्लीज आप जाके देखो, आरजीवीज माय रिव्यू ऑन एनिमल। Yeah. तो द वे ही सपोर्टेड और जिस तरह से प्रेज किया है वो काबिल तारीफ है, एंड संदीप ने तो अभी शुरू किया है Yeah. और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ लाइक एनीथिंग, और बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया फिल्में एसआरवी से आ सकती है, ऐसा एज एन एक्टर मुझे लगता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Yeah. So, would you like to tell that whole dialogue in Telugu? Do you remember? उतना ही जो अभी मैंने बोला, हु इज द मेन गाय, मेरे నా ఫోన్లో మా ఇంజనీర్తో మాట్లాడండి, పిచ్చోలాయిపో మారు మా టీం అంతా, ఓకే డైరెక్ట్ పాయింట్కి వస్తా। That Marathi dialogue also. मराठी The one- वो सब है, ए लायकीत राहायचं, याच्या इच्छा गो, अरे समजायलाच पाहिजे, रेडीवर हात टाकतो नाही बोला। In that one? और वो एक टिपिकल चीयर्स वाला जो है ना कि बटन डाओ, ये करो और निकल पड़ो, चांग बोलो, दैट मीन्स चीयर्स, जिसे चांग बोलो को तेलुगु में जय भद्रकाली वो किया था। Okay. And this thing said that toy. तो मैंने करके दिखाया था, संदीप को करके दिखाया था, मैं बोला यार थोड़ा करते हैं, क्योंकि फ्रेडी इज नॉट अ जोकर, Yeah. ही इज नॉट अ कॉमेडियन। He's an ex-serviceman also. हाँ, फोर्स का आदमी हो Yeah. ना, इज वेरी डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट पर्सन ना, तो मैं संदीप को बोला यार कि जो ह्यूमर है वो सिचुएशन में है, जैसे कि एक जस्टिफाइड भी होती है कि 5 मिनट पहले फ्रेडी उन सब लोगों को बोलता है सपोर्टर एंडवर हैज टू बी वेरी टाइट, ऐसा होना चाहिए, और हीरो बोलता है प्लीज फ्रेडी देना, मैंने अंदर से कुछ नहीं पहना। तो इट इज वेरी सिचुएशनल ह्यूमर। Yeah. और वो टुक टुक वाला वो भी है ना कि वो बोलता है कि रणबीर को बोलता है कि प्लीज आस्क योर पीपल नॉट टू टेक मी वेरी लाइटली। मैं क्या ये जतरे बेचने में, के हाँ जतरे में 5 वो वाला नहीं आया ना, तो इसके लिए वो एक मौकरी करके दिखाया था मैं संदीप, एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद दैट। और द बेस्ट थिंग वाज व्हेन वी वर डन विद दैट सीक्वेंस, और एक लंच ब्रेक हुआ था, तो एडी केम टू माय वैनिटी वैन और बोला कि सर प्लीज 2 मिनट सेट पे आ जाओ। तो मैं बोला डन ना, अभी ब्रेक है, खाना तो खाने दो। नहीं 2 मिनट आ जाओ। मैं बोला क्या है, सेट पे आ जाओ। तो वो मुझे सेट पे लेके गया, तो आधे से ज्यादा लोग वहां सिर्फ Oh God, half of the set is doing that. तो मैं सोचा यार ये अगर यहाँ इतना वर्क हुआ है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क इन द फिल्म, क्योंकि वो
शूटिंग के वक्त ही उधर ही उतना इम्पैक्ट था उसका। Exactly. तो हाँ, तो इट वाज ग्रेट फन। Sir, did he narrate you whole story? नो 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 नो, He didn't tell you. Only your characterization. या तो मैं एक तो बस मेरे पास डेट का वांदा था। आई वाज शूटिंग अनदर हिंदी फिल्म, तो मैं जैसे मैंने कहा ना, इट वाज डेस्टाइन कि मेरी डेटें मैच हो गई, सब कुछ मैच हो गया और उसमें से ये हो गया। तो ही नरेटेड मी माय माय वाला सीक्वेंस ओनली। But isn't that difficult, sir, not knowing the whole gist of the नो नो नो, इट इज डायरेक्टर्स का ये क्या है, एक्टर सिर्फ अपने कैरेक्टर के बारे में सोचता है, सीन के बारे में सोचता है। टोटलिटी में पूरी फिल्म वो डायरेक्टर देखता है। Yeah. तो एज एन एक्टर आई हैव कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन फ्रेडी। तो बहुत सारी चीज़ें मैं इम्प्रोवाइज करके और भी गया था, लेकिन संदीप को एज ए डायरेक्टर विद द कंटेंट जो करेक्ट लगा वो उन्होंने रखा, बाकी का सब चॉप कर दिया। तो मैं आई वॉज परफेक्टली ओके विद दैट बिकॉज इट वॉज हीज कॉल। मैं तो सिर्फ फ्रेडी के बारे में सोचूंगा ना, लेकिन वो टोटलिटी में वो फ्रेडी का कैरेक्टर कैसे वर्क होगा, वो टोटल फिल्म में कैसे वर्क होगा, उस हिसाब से द परफेक्ट पर्सन, करेक्ट पर्सन इज डायरेक्टर। उनको ही पता है। तो आई वॉज परफेक्टली ओके विद दैट। और ऐसे कुछ नहीं था ना कि बाकी पूरी स्टोरी मुझे पता चलती तो थोड़ा कुछ एप्लीकेशन, बिकॉज फ्रेडी का उधर आने का मोटिवेशन क्या है, ये बंदा जिसने इम्प्रेस किया है मेरे पूरे टीम को, इंजीनियर्स को, क्या दिमाग है, उसे मिलने के लिए आया है और थोड़ा समझाने के लिए आया है कैसे यूज करने का क्या है। तो इट हैज नथिंग टू डू विथ उसका प्रोटैगनिस्ट का जर्नी कैसा है, उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बाप और बेटे का कैसा है, दैट हैज नथिंग टू डू विथ फ्रेडीज परफॉर्मेंस ना। तो मुझे सिर्फ फ्रेडी के बारे में बोल दिया गया था एंड मैंने भी बस उसके बारे में ही कॉन्सेंट्रेट किया था। फिल्म मैंने प्रीमियर में देखी एंड वेरी हैप्पी। मैं एक ऐसे फिल्म से एसोसिएट हुआ हूँ। Sir, are there any calls from Telugu film industry? नो एक्चुअली, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बोल रहे हैं, जो हैदराबाद में रहते हैं, वो बोल रहे हैं कि यू विल गेट वेरी गुड रोल्स, कैरेक्टर्स फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। क्योंकि इवन संदीप टोल्ड मी कि सर प्लीज डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू मराठी एंड बॉलीवुड, प्लस कम डाउन टू साउथ यार, बहुत सारे अच्छे फिल्म मेकर वहाँ भी है। तो आई हैव डन तमिल फिल्म बट I have never done Telugu. This is your first Telugu. Yeah. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ऐसा एक बेसिक नीड्स रहते हैं ना। तो मैं हमेशा साउथ इंडियन लोगों के बारे में बोलता हूँ, रोटी कपड़ा मकान और सिनेमा फिल्म, ये उनकी बेसिक नीड्स है। तो जब मैंने तमिल फिल्म की थी तब भी उनका एक्सपीरियंस अच्छा था। व्हाट अ पीपल टू वर्क विथ, व्हाट अ पीपल टू वर्क विथ। They worship here, sir. Actors. Yes, They yes, worship yes. actors here. तो अगर अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा ओपनिंग मिला तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डेफिनेटली। मैं तेलुगु सीखूंगा, मेरे डायलॉग्स मैं ही डब करूंगा, लेकिन लेट्स होप फॉर दिस। Yeah. So every actor has an unique approach towards acting. When they given a scene, what is your approach? Do you do your own homework about the character, or you just come and perform on the set? No, not on the set. It is a technique. It is a technique. Though we say कि it has to be very spontaneous, it has to be very natural. लेकिन वो natural और spontaneous दिखाने का भी एक टेक्निक ही है। Yeah. Ultimately, it is a technique. तो ऐसे नहीं होता अभी कुछ नहीं, जस्ट कैमरा ऑन करो और जो आएगा वो आएगा, ऐसे नहीं होता ना, बिकॉज इट इज़ टेक्निक। मुझे मालूम है ये अभी ये वाइड शॉट है, इसके बाद ये ट्रॉली से कैमरा इधर मेरे फेस पे आएगा। सो एज एन एक्टर इट वेरीज एज फार एज एप्लीकेशंस आर कंसर्न। जैसे थिएटर में हम लोग काम करते थे तो एक वहाँ की रिक्वायरमेंट कुछ अलग थी। जब थिएटर में मतलब ड्रामा करते थे तो एक वहाँ की एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती थी प्रोजेक्शन बोले तो कि
पहले लाइन से लास्ट लाइन तक आपकी आवाज, आपके डायलॉग्स क्लियर सुनाई देने चाहिए। ये एक बेसिक ये रहता था ना। अभी वी यूज लेपल माइक्स, जैसे ये लगा है वैसे ही एक हाई क्वालिटी माइक्स हम वहाँ लगाते हैं, तो वो नहीं है ना। तो व्हाट आई मीन टू से, एज एन एक्टर एप्लीकेशंस चेंज हो जाते हैं, Yeah. एप्लीकेशंस चेंज हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ टेक्निक, वो टेक्निक का एक रिहर्सल करना पड़ता है ना। कि मैंने आपसे फिर ये बोला, फिर ये पॉज लिया, फिर इधर लुक दिया, ये सोचा, एक मेरा मोटिवेशन है आपके पास देखने का, ये देखा और मैंने कुछ बोला। लेकिन ये जो मैंने अभी बताया उसका एक टेक्निक that है। also need to be processed. Yes, उसका एक ये है, और उसकी एक रिहर्सल करके मुझे एक वो लॉक करना पड़ता है। Yeah. और दिखाना ऐसा पड़ता है कि एज इफ मैं अभी अभी कर रहा हूँ। तो स्पॉन्टेनियसली। हाँ, तो वो स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, वो सब अच्छे वर्ड्स है, लेकिन वो उसके लिए भी एक टेक्निक की ज़रूरत है। या एग्जैक्टली। तो वी डू लॉट ऑफ होमवर्क, तो हम लोग कर ही लेते थे। फ्रेडी के बारे में भी बहुत होमवर्क किया था। फिर मैं संदीप को बोलता था ये सोच रहा है, मेरे दिमाग में ये रहा है, एंड संदीप हाँ शो मी, हाँ करके दिखा, करके दिखा, गुड गुड। Sandeep was like that. He listens very carefully, very Yes, keenly. yes, yes, Yeah. yes. तो बहुत बार ऐसे होता था कि कभी कभी संदीप को अच्छा लगता था, और कभी कभी उसका रिएक्शन नो रिएक्शन वाला रिएक्शन रहता था। It means no. तो मुझे पता ही नहीं, अरे तुझे अच्छा लगा बुरा लगा मैं क्या समझूं। Yeah. No, मैं मेरे दिमाग में मैं सोच रहा था वो कैसा वर्क करेगा। आई वॉज देयर सर, आई वॉज देयर। But how he say no? अल्टीमेटली एज अ डायरेक्टर, जैसे मैंने कहा कि इट वॉज हीज कॉल ना, तो मैंने एज ए एक्टर ये क्या कहा था कि लेट हिम टेक अ कॉल। एज एन एक्टर थिएटर में हम क्या करते हैं, बहुत लाउड करके जाते हैं और उसे चॉप 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 फाइन ट्यून करके जितना चाहिए उतना ही करते हैं। तो मैं बोला कि लेट मी गिव थोड़ा ज़्यादा ही, और संदीप Let him choose. हाँ, एज अ कैप्टन ऑफ शिप ही इज अ बेटर पर्सन कि जो करेक्ट चॉप करके जितना चाहिए उतना रख लेगा। तो दैट वाज नाइस, एंड ही वाज ओपन टू एवरीथिंग। जो भी मेरे दिमाग में आया मैं बोलता गया, एंड ही वाज एवरी टाइम नो शो मी, एवरी टाइम ही वाज लाइक दैट ओनली कि नो प्लीज अभी मत, ऐसा कभी भी नहीं किया। Okay. How many films have you done, sir? Like आई around हैव नॉट काउंटेड, 50, above 50? around 50. Okay. Because as I said, I do very selected work. Yeah. Even in Marathi. I'm very happy कि अगर 50 फिल्में से मेरी 12 फिल्में नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में हैं, तो आई एम ऑन करेक्ट पाथ, ऐसे मुझे लगता है, मालूम नहीं मुझे। बट क्योंकि आफ्टर पेशरी और सरकार राज उतना अच्छा काम मेरे पास हिंदी में आया नहीं, तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आई स्टॉप्ड बॉलीवुड फिल्म्स, बिकॉज एट द सेम टाइम आई वाज गेटिंग वेरी गुड रोल्स, कैरेक्टर्स इन Marathi, yeah. तो बस वो बॉलीवुड है तो कुछ भी करो, ऐसे नहीं हो सकता। तो उससे अच्छा है मेरा छोटा वाला कंटेंट ओरिएंटेड छोटा सा अपना That's great. original film करो। Great, sir. Sir, is there any project that you found difficult to do or difficult to work with the director? Is there any project like that? मैं नाम तो नहीं ले सकता। ओके, लेट मी पुट इट इन दिस वे। I always say it is a creative process. तो creative process, it is not a 100-meter race कि सबको हरा के मैं पहला आ गया। It is always a chemistry. It is a chemistry between two actors. It is a chemistry between actor and director. तो आपके सवाल का जवाब यही है कि बहुत बार वो इट इज़ नॉट नेसेसरी संदीप की और मेरी एनिमल में जो एक केमिस्ट्री वर्क हो गई वो हर डायरेक्टर के साथ मेरी बन जाए। कभी कभी वो केमिस्ट्री वर्क नहीं होती तो काम करने में भी उतना मज़ा नहीं आता और ये नहीं होता। इट इज़ all depend on that chemistry. Yeah. Chemistry between Understanding two actors, and, yeah. understanding between two actors. Actor and director. Co-actors और director actor की chemistry अच्छी होनी ही चाहिए।
it reflects. Did you come out of those projects, sir, or did you continue to do complete those projects? No, no, no. I'm not a technician, ना. I'm not a camera. अरे अच्छा नहीं लगा, चलो छोड़ो, मैं clash भेज देता हूँ. Actor clash कैसे भेजेगा? We once you are committed. You have to, yeah.